Good morning, dear student. In previous class, we read the story of the village Palampur, and we read about the villagers of the Palampur also, and we are also known about the production activity and production activities done by the natural resource, man-made item, human efforts, money, etc. And in previous class we also read the organization of production and four requirement of production, which one? Land, labor, physical capital, human capital is also read in the previous class. But now we read farming in Palampur. Today we read about the farming of the Palampur. Which type of the farming is done in the Palampur? First is land is fixed. Farming is the main production activity. We are also known in the village Palampur, main occupation which one? Farming. So farming is the main activity in Palampur. Then 75% people are dependent on their farm. They could be farmers or farm laborers. ये फार्मर्स भी थे, इनके साथ में छोटे किसान कह सकते हैं हम इन्हें, या ऐसे लोग भी थे जो एज ए लेबर के रूप में यहाँ पर काम करते थे. लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज प्रैक्टिकली फिक्स. लैंड एरिया इज ऑल्सो फिक्स कि दिस इज माई लैंड, दिस इज योर लैंड. There has been no expensive in land area under cultivation. Some of the wasteland in the village, कुछ इसमें वेस्टलैंड भी थी जिसे हार्ड वर्क के बाद में किसमें कन्वर्ट किया गया? कल्टिएबल लैंड में कन्वर्ट किया गया. तो सो इन विलेज पालमपुर लैंड इज द पीस एंड farming is the main occupation in the Palampur. And how many people are engaged? 75% people are dependent on their farm. Second, is there way one can grow more farm the same land? क्या हम ये कह सकते हैं कि जो किसानों के पास में लैंड है उस पे पूरे साल वो एक ही टाइप की खेती करते थे या डिफरेंट खेती करते थे? So read in Palampur 3 type of crop grown here. Why the 3 type of the crops grown here? Because in India monsoon season and our climate have the different type of the climate. Which one? Winter season, rainy season, summer season. So in this condition we have the type of the crops also. First is Rabi crops, second Kharif crops, third Jayad crops. Dear student, first we read about the Rabi crops. What is the means of the Rabi crops? Rabi crops which are grown in October, November. जो फसल कौन से मंथ में हम उगा रहे हैं? अक्टूबर एंड नवंबर. फॉर एग्जाम्पल वीट. हम कौन सी फसल उगा रहे हैं इस समय? वीट. इट इज ऑल्सो कॉल्ड विंटर क्रॉप्स. इसे हमने क्या नाम दिया है? विंटर क्रॉप्स. तो व्हाट इज द मीन्स ऑफ द रबी क्रॉप्स? विच आर ग्रोन इन अक्टूबर नवंबर. फॉर एग्जाम्पल वीट. इट इज ऑल्सो कॉल्ड विंटर क्रॉप्स. सेकेंड खरीफ क्रॉप. इट इज कॉल्ड रेनी क्रॉप्स. When the rains comes in India, then farmers grow different type of crops also. So it is called the rainy crops also. So kharif crops the others name rainy crops which are grown in June and July. कब उगाई जाती है ये? June and July. These crops are dependent on rain completely. These crops किस पे डिपेंड हैं? रेन पे. Example rice and maize. Third is Jaid crops.
in the middle time period of the Rabi and the Kharif crops, and completely rest of the time period after the crops, these crops are grown in February and April. ये क्रॉप्स रबी और खरीफ के बीच का टाइम पीरियड होता है, फरवरी और अप्रैल में इनको उगाया जाता है। एंड इसमें हम वेजिटेबल्स के साथ में जो हमारी कैटल्स हैं उनके लिए चारा भी उगाते हैं। तो अगेन रिपीट, these crops are grown in February, April. These plants are used as cattle feed. From wheat, farmer kept wheat for their family and for selling also. हमारे पास में लार्ज जब व्हीट का सरप्लस होता है तो फार्मर उसमें से कुछ भाग अपने पूरे ईयर के लिए रखते हैं और जो सरप्लस होता है उसे मार्केट में सेल करते हैं। एंड इसके अलावा यहाँ पर अनदर शुगर केन भी प्रोड्यूस किया जाता है। इट इज रॉ मटेरियल फ्रॉम जगजरी इज सोल्ड टू ट्रेडर। इसकी रॉ मटेरियल से क्या तैयार हो रहा है? जगजरी मतलब गुड़ तैयार हो रहा है और उसे भी सेल करने का काम किया जाता है। पालमपुर इज वेल डेवलप्ड विलेज। Farmers use tubewell for irrigation. And in previous class, we are read about the Palampur condition. It is a well developed village. And ज़्यादातर लोग इरिगेशन के लिए किसका यूज करते हैं? ट्यूबवेल्स का यूज करते हैं। To grow more than one crop on a piece of land, and all farmer in Palampur grow at least 2 main crops. और अकॉर्डिंग टू द सीजन पालमपुर में भी फार्मर्स डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स उगाते हैं। थर्ड, विल द लैंड सस्टेन। लैंड बीइंग अ नेचुरल रिसोर्स, वी आर ऑल्सो नोन कि लैंड कैसा है? नेचुरल रिसोर्स है। एंड इट इज़ नेसेसरी टू बी वेयर वेरी केयरफुली, एंड इट इज़ मस्ट कंपल्सरी कि हम इसको केयरफुली यूज करें। In many areas, green revolution is associated with the loss of soil fertility. जब हमारे इंडिया में फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज हो गई थी तब हमारे साइंटिस्ट ने हमें ग्रीन रेवोल्यूशंस के बारे में बताया था। ग्रीन रेवोल्यूशन इज अ मेथड फॉर द इंक्रीज ऑफ प्रोडक्शन बाय द लॉट ऑफ यूज ऑफ केमिकल्स एंड द फर्टिलाइजर्स। हम एक बार तो प्रोडक्शन इंक्रीज कर लेते हैं, बट ज़्यादा से ज़्यादा जब हम केमिकल्स का यूज करते हैं तो उसकी फर्टिलिटी क्या होती है? डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। कंटिन्यूस यूज ऑफ द ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल इरीगेशन हैज रिड्यूस द वाटर लेवल बिलो द ग्राउंड, एंड द सेम मेथड इज ऑल्सो इन द ग्राउंड वाटर ऑल्सो। कि ग्राउंड वाटर से जब हम ट्यूबवेल से इरिगेशन ले रहे हैं तो धीरे धीरे पानी का लेवल क्या होना शुरू हो जाएगा? कम हो जाएगा। हमारे पास में अगर रेन सफिशिएंट नहीं हुई तो ग्राउंड वाटर की क्या हो जाएगी? शॉर्टेज हो जाएगी। वंस डिस्ट्रॉय इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रीस्टोर देम। अगर ये एक बार सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, हम इन्हें रीस्टोर नहीं कर सकते। वी मस्ट टेक केयर ऑफ द एनवायरनमेंट टू इंश्योर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। सो इट इज़ नेसेसरी कि फॉर द फ्यूचर या फॉर द एनवायरनमेंट हमें इसको क्या करना है? सेव करना ज़रूरी है। फोर्थ, हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर ऑफ पालमपुर। हम लैंड को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन पालमपुर। हमें पता है कि पालमपुर में 450 फैमिलीज रह रही हैं, एंड it is not possible कि all families are belong to the small land and all families are the rich. So in this condition Palampur have the different type of the farmers. So in Palampur 3 categories of the farmer. First is large land of farmers. These farmers have their own land. ये वो farmers हैं जिनके पास अपनी खुद की लैंड है, एंड द वेरी लार्ज पार्ट ऑफ लैंड दे हैव। बहुत ही लंबा चौड़ा लैंड का एक पार्ट उनके पास में है। लैंडलेस फार्मर्स डू वर्क हेयर फॉर देयर लाइवलीहुड।
जो लैंडलेस फार्मर्स हैं वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। सेकेंड, स्मॉल लैंड ऑफ फार्मर्स, दीज फार्मर हैव अ स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड, ये वो किसान है जिनके पास भूमि का छोटा टुकड़ा है फॉर देयर लाइवलीहुड एंड देयर इज नो इनफ लैंड फॉर देयर अदर पर्पज, एंड इसके अलावा उनके पास में ऐसा और कोई साधन नहीं है जिसे वो यूज कर सके। थर्ड इज लैंडलेस फार्मर्स, दीज फार्मर्स हैव नॉट देयर ओन लैंड एंड दीज पीपल डू वर्क इन अदर फार्म, और ये पीपल किसके पास में काम करते हैं, जो बिग फार्मर्स हैं उनके पास में काम करते हैं और अर्निंग का काम करना स्टार्ट करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, इन दिस क्लास वी रीड अबाउट द फार्मिंग पैटर्न ऑफ द पालमपुर, जिसमें हमने किसके बारे में पढ़ा, लैंड के बारे में पढ़ा, देन डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स के बारे में, एंड लैंड सस्टेन एंड डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द फार्मर। So dear student, completely read about the chapter again and do your homework also.